Hello, aspirants, and welcome to NAMASTE Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 10 February 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So, this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about green steel. Now, you must be hearing this term green often in the news now, like green steel, green hydrogen. ठीक है, अब देखिएगा ये जो steel है, steel cannot be green color. Steel is commonly it is silver or green color, right? And if we talk about hydrogen के बारे में, hydrogen का कोई color होता नहीं है. It is a colorless gas, but still we say green color, right? Green hydrogen कहते हैं हम. तो ये जो green color है, green color is actually about the process of its manufacturing, how you manufacture it. अगर आप steel को आप इस तरीके से manufacture कर रहे हो कि उसमें emission कम हो रहा है, तो it will be called as green steel. And a similar thing is also applicable for hydrogen as well. Okay, so the news says the Ministry of Steel seeks to reduce carbon emissions in steel industry through the promotion of green steel. अब ये जो article it can be important for our prelims and also from mains. It can be important from GS paper 3 environment pollution and degradation point of view. Simply taken from the Press Information Bureau. तो चलिए बात करते हैं अबाउट द ग्रीन स्टील के बारे में. तो ग्रीन स्टील जो है इट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. तो नॉर्मली देखिए जब भी हम स्टील के बारे में बात करते हैं अब सबसे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज एक्चुअली आयरन एंड कोल. तो कोल जो है हम कोल से हम क्या करते हैं वी बेसिकली जनरेट द एनर्जी फ्रॉम कोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है इन द ट्रेडिशनल मेथड दैट वी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील उसमें क्या होता है जो कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच वी ऑलरेडी नो कि इट इज़ ग्रीन हाउस गैस. तो उसमें क्या हो जाता है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द क्लाइमेट एंड ऑल्सो फॉर द ग्लोबल वार्मिंग के कारण. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वी जस्ट ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर स्टील विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. ठीक है, सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज सच एज हाइड्रोजन. ठीक है, अभी हाइड्रोजन इज ऑफन यू विल फाइंड दैट being promoted for the production of or you can say it can is promoted as a major energy source now, hydrogen. Okay, and then coal gasification or electricity instead of the traditional carbon intensive manufacturing route of carbon या फिर coal fired plant. तो coal fired plant का बस दिक्कत यही है कि इसमें carbon emission काफी ज्यादा रहता है. It eventually lowers greenhouse gas emission, cuts cost and improves the quality of steel. Low carbon hydrogen जैसे कि like I've covered in the number of articles about the green hydrogen के बारे में, right? तो मैंने उसमें बताया था what is blue hydrogen. तो इसमें क्या रहता है ग्रीन या ब्लू में इट इज ओनली अबाउट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन जहां पे एमिशन कम रहता है. ठीक है, सो इट कैन हेल्प रिड्यूस द स्टील इंडस्ट्रीज कार्बन फुटप्रिंट. तो एज यू कैन सी द एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन स्टील इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द ग्रीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द लाइक अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ग्रीन स्टील कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग some you can say some climate friendly energy sources, right? So if we talk about the ways of production, so the first important way of producing the greenhouse would be by replacing or by substituting the primary production processes with cleaner alternatives. So if we basically shift towards cleaner alternative or through cleaner mechanisms for producing steel, then we can say जो यहाँ पे steel produce होगा, it can be termed as green steel basically. तो पहला मेथड यहाँ पे बताया गया about carbon capture, utilization and storage. तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई प्लांट में कार्बन एमिट हो भी रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैन कैप्चर इट, वी कैन यूटिलाइज इट फॉर नंबर ऑफ यूजेस. ठीक है, एंड ऑल्सो स्टोर इट एज वेल. उसके बाद वी कैन रिप्लेस द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद लो कार्बन हाइड्रोजन. ठीक है, तो नॉर्मली हम जो कन्वेंशनल या जो ट्रेडिशनल हम मेथड यूज करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको वी हैव बीन यूजिंग कोल नॉर्मली फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील के लिए, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के लिए, तो उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद लो कार्बन हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑल्सो द ब्लू हाइड्रोजन. ठीक है, एंड ऑल्सो द डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू electrolysis of iron ore. So this basically can be done for like producing green steel. And if you look at the significance of this particular industry, so you should know that steel industry जो है it is the largest industrial sector in terms of intensive energy and resource use. देखिए यहाँ पे काफी energy यहाँ पे use होता है. It is one of the biggest emitters of carbon dioxide. Okay, interestingly, if you see, जो country यहाँ पे the countries which basically manufacture the huge amount or you can say the largest amount of steel, now they are also the largest emitter of carbon dioxide in the world. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया it is one of the biggest emitters of carbon dioxide. In view of the commitment made at this COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था in the year 2021 में, तो वहाँ पे PM साहब ने वहाँ पे बताया था about the पंच अमृत के बारे में. ठीक है, so the Indian steel industry also needs to reduce its emissions substantially by 2030 and hit the net zero emission by 2070. तो अगर हम मान लीजिए कि if we shift
towards the green steel, or if we shift towards the renewable sources of energy, only then we will be able to meet our targets that we have mentioned in the COP26. For example, हमने बताया था about being a net zero emitter by the year 2070. So ये जो particular visions है of the Indian government, तो इसमें ये green steel is going to help or can turn out to be beneficial for achievement of such goals, right? उसके बाद इफ यू लुक एट द स्टेटस ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, सो प्रोडक्शन के हिसाब से अब यहाँ पे यू शुड नो वन थिंग दैट प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो, इंडिया इज एट द सेकंड पोजीशन, ठीक है. सो इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील एंड नीडलेस टू से द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इज चाइना, ठीक है. सो करेंटली अगर हम बात करेंगे, चाइना इज द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड विच ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 57% ऑफ द वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन इन द ईयर 2020, ठीक है. सो यू शुड पे अटेंशन यहाँ पे. देखिए 2020 में चाइना ने 57% ऑफ वर्ल्ड का जो स्टील है ना, तो उसे प्रोड्यूस किया था. एंड इंटरेस्टिंगली, देखिए वेरी इंटरेस्टिंगली, चाइना नेक्स्ट ईयर आप देखोगे इन द ईयर 2021 में इट बिकेम द बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ऑब्वियस सा बात है, इफ यू प्रोड्यूस मोर स्टील डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर एज वेल, ठीक है. सो इंडिया, इफ यू लुक एट इंडियाज केस, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, प्रोड्यूसिंग 120 मिलियन टन्स क्रूड स्टील ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21 to 22. लास्ट ईयर हमने 120 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था. लुक एट द रिजर्व्स, तो मोर देन 80% जो है कंट्री का रिजर्व्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है. तो नॉर्मली यू विल फाइंड जो स्टील है, या आप देखोगे स्टील जो है, स्टील नॉर्मली प्रोड्यूस होता है इन दोज प्लेसेस जहाँ पे सरप्लस ऑफ आयरन भी है प्लस सरप्लस ऑफ कोल है, बिकॉज द आयरन इज द रॉ प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द आयरन ओर बीइंग द रॉ प्रोडक्ट, एंड जो यहाँ पे कोल है, कोल बेसिकली प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर इट, ठीक है. सो इसीलिए आप देखोगे द रीजन विच इज मोस्ट यू विल फाइंड द मोस्ट जहाँ पे पाया जाता है द ग्रीन स्टील प्रोडक्शन, सो इट इज मोस्टली द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, ठीक है. सो जहाँ पे ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दे आर दी हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है. ओडिशा माना जाता है द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, और 80% जो है ये बस यही स्टेट्स देते हैं, प्लस द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर भिलाई इन छत्तीसगढ़, देन दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, बुरनपुर इन वेस्ट बंगाल, देन जमशेदपुर इन झारखंड, रोडकिला इन ओडिशा, एंड बोकारो झारखंड, ठीक है. तो इन सारे जगहों पे you'll also find the like establishment like the SAIL, the Steel Authority India Limited. Then यहाँ पे आपको पाया जाएगा offices on the production plant of companies like Tata Steel, ठीक है. So and finally, if you look at the consumption के केस में, as I was saying, production के केस में भी और consumption के केस में भी, we are second to China, ठीक है. So India is the second largest consumer of finished steel in 2021, preceded by China as the largest steel consumer as per the World Steel Association. And finally, if we look at some of the other government initiatives which are in way like in achieving like green steel, ठीक है. यहाँ पे बताया गया about the steel scrap recycling policy of 2019. तो ये जो steel scrap recycling policy है ना, it enhances the availability of domestically generated scrap to reduce the consumption of coal in steel making. तो यहाँ पे ये जो recycling policy है, तो mostly we are focusing on generation of scrap, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे scrap, if we generate more and more scrap, it will be like reducing the burden ऑफ कोल, ठीक है. तो कोल पे जितना बर्डन पड़ता है वो कम हो जाता है. एंड ऑल्सो अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. अब ये जो देखिए जो मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एज आई टोल्ड यू, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट हाइड्रोजन एज एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फ्यूल, ठीक है. तो अगर हम मान लीजिए इफ वी जनरेट मोर एंड मोर ग्रीन हाइड्रोजन, देन दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द एनर्जी सेक्टर एज वेल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो स्टील सेक्टर हैज ऑल्सो बीन मेड अ स्टेक होल्डर इन द मिशन, ठीक है. तो यहाँ पे स्टील सेक्टर में भी हम इसे यूज कर सकते हैं. प्लस द मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी रूल्स ऑफ सितंबर 2021. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल्स रूल्स के बारे में, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि इफ अ कार इज टू ओल्ड, तो उसे द गवर्नमेंट बेसिकली मोटिवेट्स द कंज्यूमर्स टू स्क्रैप इट डाउन, ठीक है. और स्क्रैप अगर आप करते हो तो आपको कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग द टैक्स फॉर योर न्यू कार, राइट. सो इट शैल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रैप. अगर मान लीजिए कि इस तरीके से इफ यू आर स्क्रैपिंग द ओल्ड व्हीकल, डेफिनेटली अगेन हम कह सकते हैं कि जो कोल पे जो बर्डन होता है वो कम हो जाएगा, because we'll have more and more scrap in the steel sector. And about the next one, it is given as the National Solar Mission. So it was also launched by the Ministry of New and Renewable Energy in 2010 में launch किया गया था. It promotes the use of solar energy and also helps reduce the emission of steel industry, ठीक है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं. हाइड्रोजन अगर हम यूज करते हैं, then we'll be reducing the burden down on coal. And also if we use solar energy, अगर मान लीजिए कि if we have got abundant solar power, then that particular energy can also be used in the production of steel.
ठीक है. So basically we are trying to like get rid of the of too much of burden on the coal, ठीक है. उसके बाद अबाउट द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम. सो द पैट स्कीम जिसे विच स्टैंड्स फॉर द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, इट इंसेंटिवाइजेस द स्टील इंडस्ट्री टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है. सो एंड ऑल्सो अबाउट द नेडो, दैट इज द न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, इट इज बेसिकली जापान प्रोजेक्ट. तो ये हमने इंप्लीमेंट किया है इन द स्टील प्लान फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द नमस्ते स्कीम. अब ये जो नमस्ते है, इट स्टैंड्स फॉर द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. तो द यूनियन बजट ऑफ द करंट ईयर हैज एलोकेटेड ₹100 crore यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं फॉर दिस पार्टिकुलर स्कीम, फॉर दिस पार्टिकुलर नमस्ते स्कीम. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. तो ये जो स्कीम है, इट इज मोस्टली फॉर द पीपल हु वर्क्स इन द सीवर, इन द क्लीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक वगैरह, ठीक है. तो इनका जो वर्कर्स है उनके लिए मेंट है ये पर्टिकुलर स्कीम. तो इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, ऑल्सो इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंस जीएस पेपर टू गवर्नेंस point of view. It has been taken from the Press Information Bureau again. तो पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द स्कीम, अबाउट द नमस्ते स्कीम. तो देखिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग, एज आई वाज सेइंग, देयर इज द क्लीनिंग ऑफ द सीवर्स, द सेप्टिक टैंक्स. So this you can see the picture of what manual scavenging is. So in terms, it is defined as the removal of human excrement from the public streets and dry latrines and cleaning septic tanks, gutters and sewers. ठीक है. तो this is how the manual scavenging is defined. ठीक है. तो इंडिया ने इसे बैन किया था under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act of 2013. तो इस एक्ट में इसे बैन किया था. अब बैन करने का देखिए दो यहाँ पे कारण है. तो पहला तो ये कारण है कि यहाँ पे ना ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में आप देखोगे तो पीपल का काफी यहाँ पे डेथ हो जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे डेथ का जो नंबर से काफी ज्यादा है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सच एक्ट, ठीक है. और यहाँ पे दूसरा कारण ये भी है कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो क्लीनिंग है, इट ऑल्सो लीड्स टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस, ठीक है. काफी यहाँ पे डिजीज स्प्रेड होता है. सो दिस इज, ये जो एक्ट है, इसे माना जाता है, जो एक्ट है, ये एक्ट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस द मैनुअल स्कैवेंजिंग एज अ डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस, ठीक है. इट इज नॉट अ ह्यूमन प्रैक्टिस एट ऑल. तो दिस इज द रीजन व्हाई इसे बैन किया. अगर मान लीजिए कि बैन करते, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम इसे साफ नहीं करेंगे. डेफिनेटली हम साफ करेंगे, बट वी कैन यूज साइंस, वी कैन यूज अदर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट. बट द पर्सन यहाँ पे ये काम करना, दिस इज नॉट राइट एट ऑल. सो दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन बैन्ड, ठीक है. एंड वील लुक एट द स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन इन द एट इंडियन लेवल टू like tackle the menace of manual scavenging. तो पहला ये जो एक्ट है ना, ये जो Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Rehabilitation Act, इसे अमेंड किया गया था in the year 2020 में. So it proposes to completely mechanize sewer cleaning, introduce way for on-site protection and provide compensation to manual scavengers in case of sewer death. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का डेथ होता है तो उनको कंपेंसेट किया जाएगा. पहला बात जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी साल पहले ये ऑब्जर्व किया था, द पीपल शुड बी कंपेंसेटेड लाइक इन अ प्रॉपर मैनर. एंड ऑल्सो यहाँ पे बताया जाता है कि कंप्लीट मैकेनाइज करना होगा, ठीक है. यहाँ पे नो पर्सन शुड बी इन्वॉल्व, नो पर्सन वुड बी, ऑब्वियसली जो भी मशीन है वो तो ह्यूमन ही विल बी यूजिंग इट, ह्यूमन विल बी इंप्लीमेंटिंग इट. बट देन अगेन यहाँ पे एक पर्सन डायरेक्टली जाके कोई साफ नहीं करेगा, ठीक है. सो इसीलिए लाया गया था ये एक्ट. बट अगर हम बात करेंगे, इट विल बी एन अमेंडमेंट टू द प्रोहिबिशन. ये जो करंट एक्ट है, तो इसी का ये लाइक अमेंडमेंट है, बट इट इज स्टिल वेटिंग अ कैबिनेट अप्रूवल, ठीक है. And finally, if you look at the current context, so Union Budget, as I was saying, 100 crore का एक यहाँ पे पैकेज अनाउंस किया है for the Namaste scheme. Namaste stands for National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem. So this is meant for the manual scavengers only, the people who are employed in the particular cleaning of the sewage tanks. And the government is looking to enable 100% mechanical desludging of septic tank and sewers in all cities and town. देखिए, desludging का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे जो भी सिल्ट या जितना भी सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हुए, इसी को क्लीन करना, ठीक है. Enable 100% mechanical desludging. The process of extending the scheme to all the urban local bodies, that is municipality वगैरह जो भी corporations होते हैं of the country, has already been initiated. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं about this particular नमस्ते scheme. So first objective is set to be zero fatalities in the sanitation work in India. As I was saying कि यहाँ पे काफी डेथ होता है, तो इसी को जीरो लाइक कम नहीं, कंप्लीटली यहाँ पे जो डेथ है उसे खत्म करने के लिए ये स्कीम लाया गया है. All sanitation work is performed by
skilled workers only. तो मान लीजिए जो भी यहाँ पे मशीन वगैरह यहाँ पे जो भी रन करेगा should be done by skilled workers only, so that no kind of fatalities can be caused in this particular process. And also no sanitation workers come in direct contact with the human fecal matter. तो जो भी गंदगी है, जो भी human excrete है, तो उसके साथ कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है. प्लस द सैनिटेशन वर्कर्स जो है आर कलेक्टिवाइज्ड इनटू SHGs, दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड आर एम्पावर्ड टू रन सैनिटेशन एंटरप्राइजेस, सो दैट यहाँ पे आप देखोगे अगर हम मान लीजिए अगर हम उनको ऑर्गेनाइज करते डेफिनेटली विल बी ऑल्सो गिविंग देम अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज और यू कैन से फॉर्मल तरीके से उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. तो स्ट्रेंथन सुपरवाइजरी एंड मॉनिटरी सिस्टम्स एट द नेशनल, स्टेट एंड द अर्बन लोकल बॉडी levels to ensure enforcement and monitoring of the safe sanitation work. तो यहाँ पे जो भी like system है, the supervisory and monitoring system at all the level, now they should be done in an efficient manner. Plus increase awareness among the sanitation service seekers. तो जिनको भी ये सर्विसेज लेना है, जिनको साफ वगैरह कराना है, now they should also seek it from the registered and skilled sanitation workers only. ठीक है. Plus, if you look at the key features of this scheme, that is of the Namaste scheme के बारे में, the first important sector, or you can say the first important part about this scheme is to identify the people. ठीक है, तो पहले बताया गया है about identification. So it envisages identifying the sewer or the septic tank workers, occupational training, and the distribution of PPE kits दिया जाएगा to the workers. ठीक है, plus assistance for safety devices to the sanitation response unit. Alright, and also extending health insurance scheme. तो अभी गवर्नमेंट की जितने भी सारी स्कीम है, for example, the central level, you have heard about the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इनमें भी ताकि उनको फैमिलीज और प्लस जो वर्कर्स है उनको दिया जा सके हेल्थ इंश्योरेंस लाइक बेनिफिट्स. तो दिस इज द वन ऑफ द सेक्टर, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्कीम. एंड ऑल्सो अबाउट द लाइवलीहुड असिस्टेंस, द एक्शन प्लान विल प्रमोट मैकेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट एंड सब्सिडी, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा सैनिटेशन वर्कर्स टू प्रोक्योर सैनिटेशन रिलेटेड इक्विपमेंट. तो जो भी मान लीजिए कि यहाँ पे मैकेनिकल या बताया गया अबाउट मैकेनाइजेशन के लिए जितना भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी the government will be taking up initiatives to support them. All right. And also about the IEC, that is the Information, Education and Communication Campaign. So massive campaign would be undertaken jointly by the urban local bodies and the National Safai Karmachari Finance and Development Corporation to spread awareness about the interventions of the Namaste scheme. तो Namaste scheme का जितने भी सारे benefits है ताकि ये सबको पहुंचे, इसी के लिए यहाँ पे awareness campaign भी चलाए जाएंगे. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द अमृत सरोवर मिशन. सो अ टारगेट ऑफ 50,000 अमृत सरोवर्स जो यहाँ पे टैंक कंस्ट्रक्ट करने ना, इट वाज टू बी सेट टू बी कंप्लीटेड बाय अगस्त 15, 2023. तो इसी आर्टिकल के बारे में देखेंगे. ये बेसिकली अमृत जो यहाँ पे हम इस बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो उसी के लिए यहाँ पे एवरी डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत यहाँ पे टैंक्स वर बेसिकली प्लान. तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फ्रॉम मेंस. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स बीन टेकन फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो again. So a target of 50,000 Amrit Sarovars was set to be completed by August 15, that is 2023. इस साल में ही यहाँ पे 50,000 अमृत सरोवर टैंक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, और अभी के टाइम में ये न्यूज इसीलिए है बिकॉज सो फार 60% ऑफ द टारगेट हैज ऑलरेडी बीन अचीव. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 50,000 में से 30,000 जो है ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं इन अ स्पैन ऑफ 9 मंथ्स. तो 9 मंथ्स इसीलिए बिकॉज इसे अप्रैल में लॉन्च किया गया था. ठीक है, तो याद रखिएगा ये डेट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये अप्रैल 24, दिस इज एक्चुअली द नेशनल पंचायती राज डे एज वेल. ठीक है, तो इसी डे में लॉन्च किया गया था अप्रैल 24 में दिस पर्टिकुलर स्कीम. तो ऑलरेडी इन द करंट कंटेक्स्ट में इफ वी सी 30,000 हैव बीन ऑलरेडी बीन बिल्ड, बस अभी 20,000 कंस्ट्रक्ट करने हैं टिल अगस्त 15, 2023. सो दिस वाज डन एज पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट 75 years of India's independence. The mission aims to construct, rejuvenate at least 75, at least, ठीक है, not like 75 but at least 75 Amrit Sarovars in each district across India to overcome the वाटर क्राइसिस इन रूरल एरिया. तो रूरल एरियाज में जो भी वाटर क्राइसिस यहाँ पे फार्मर्स फेस करते हैं लाइक विद रेस्पेक्ट टू दी with respect to the agriculture or the consumption, तो इसी को यहाँ पे टैकल करने के लिए स्कीम लाया गया था to construct 75 अमृत सरोवर्स in each district. ठीक है, तो यहाँ पे as you can see the Prime Minister has been announcing this particular scheme. ठीक है, all these 75 सरोवर्स will come up in every district by 15th August in 2023. Now these सरोवर्स, ये जो tanks है, now they should be lined with trees named after the martyrs and freedom fighters. All right, so this was said by the Prime Minister Narendra Modi. Now if you look at the major features of this particular सरोवर scheme के बारे में, मतलब मिशन के बारे में, so the
होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो यहाँ पे 6 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आर एक्चुअली वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो प्लस इन कंजंक्शन विद द टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक BISAGN, दिस भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो एंड प्लस द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। तो यू विल फाइंड ऑलरेडी यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है लाइक 6 मिनिस्ट्रीज प्लस गवर्नमेंट at different level, now they are working in collaboration to implement this particular mission. So यहाँ पे in a whole of the government approach कहा गया है इसे, ठीक है। तो 6 ministries which are a part of this particular mission is the Ministry of the Rural Development, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Culture, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Environment and Forest and Climate Change. So these ministries are a part of this particular Sarovar mission. And there is also the PM now speaks a lot about the Jan Bhagidari के बारे में. It basically means the people's participation, ठीक है। So it has been ये जो people's participation है, it is the core of this mission and it involves people's participation at all the levels. प्लस इनोवेटिव मेजर्स द मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे, ठीक है। यहाँ पे इनोवेटिव मेजर्स देखिए, जब यहाँ पे ये जो टैंक है या जो वाटर टैंक से जब कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे तो जो भी सिल्ट या जो भी सॉइल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा या मान लीजिए जो भी सॉइल हमें मिलेगा तो दैट पर्टिकुलर सॉइल लाइक कैन बी यूज्ड बाय, यहाँ पे जो सॉइल है प्लस सिल्ट है तो दोज पर्टिकुलर सॉइल एंड सिल्ट कैन बी यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये मिनिस्ट्रीज इसे यूज करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली, ठीक है, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नियर द अमृत सरोवर है। तो वो टैंक्स के पास में जितना भी रास्ता रेलवे ट्रैक बनेगा उसी में यू कैन से कि ये मिनिस्ट्रीज यहाँ पे सॉइल एंड सिल्क को यूज करने वाले हैं। ऑल्सो द पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडीज आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन a construction and the rejuvenation of several Amrit Sarovar across India, and plus boosting rural livelihood. So the completed Sarovars are boosting the rural livelihoods by being used for activities such as irrigation, fisheries, duckery, then cultivation of water chestnut and animal husbandry among others. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक और पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about the POCSO Act. अब इसे मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, but again this has been in the news, especially in the Arunachal Times. तो यहाँ पे देखिए the news says that a special sessions judge in Papumpara district has sentenced one woman to 7 days imprisonment and a fine of ₹30,000 on her under section 22 of the POCSO Act for misusing the act, ठीक है, and giving false information under it. तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ काफ़ी सिंपल है। बस यहाँ पे लाइक अ वुमन ने क्या किया था, उनका लाइक शी वॉज अ मैरिड वुमन, तो उनका जो हस्बैंड है उनके साथ कुछ लाइक देयर वाज अ काइंड ऑफ अनबन चल रहा था, ठीक है। इट वाज दे वर फेसिंग अ काइंड ऑफ अ ट्रबल मैरिज। तो ये ट्रबल मैरिज में यहाँ पे क्या हुआ था, जो फैमिली था उनके पास में एक लाइक वाज अ मेड, ठीक है, देयर वाज अ अंडर एज मेड था, तो जो उनके घर में काम करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे द मेड ने एक दिन क्या किया, उन्होंने केस दे दिया कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड ने वो मेड को लाइक शी हैड बीन रेप्ड बाय द हस्बैंड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद केसेस वगैरह यहाँ पे चल रहा था एंड फाइनली यहाँ पे रिसेंटली इन यू टर्न बताया गया है कि जो मेड है, अब मेड ने ये टेस्टिफाई किया है कि हस्बैंड ने कुछ भी यहाँ पे रेप वगैरह नहीं हुआ था। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पे जो वुमन है, द वुमन ने मेड को यहाँ पे इंस्टिगेट किया था कि आप यहाँ पे फॉल्स केस दो। बस इतना ही न्यूज है, ठीक है। तो न्यूज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस आर्टिकल से हम बात करेंगे अबाउट पॉक्सो एक्ट के बारे में, व्हिच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड आल्सो फॉर मेंस। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू, तो बी टेकन फ्रॉम द अरुणाचल एक्सप्रेस। सो द पॉक्सो एक्ट यहाँ पे पास किया गया था इन 2012 में। तो चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट आर इंडिविजुअल्स एजेस बिलो 18 ईयर्स। तो 18 के बिलो इनको चिल्ड्रन माना जाता है। दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। तो ये जो एक्ट है इज नॉट जस्ट फॉर द गर्ल चाइल्ड, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द बॉय चाइल्ड एज वेल। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज including but not limited to sexual harassment, pornography, etc., are defined under this particular act. Sexual assault is to be aggravated under certain circumstances, such as when the child is mentally ill. तो मान लीजिए अगर कोई चाइल्ड mentally ill है और उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो इसे aggravated माना जाएगा, इसे और भी worse माना जाएगा। And also when the abuse is basically it has been committed by a person in a position of trust. For example, मान लीजिए डॉक्टर जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, टीचर जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, पुलिसमैन प्लस फैमिली मेंबर। तो when this particular people are basically engaged in the act, the act would be termed as aggravated, that is more worse than nature, ठीक है। उसके बाद according to this act steps must be taken which makes the investigation process as child friendly as possible and the case is disposed of within 1 year from the date of reporting the offense, ठीक है। माना जाता है यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में ये जो एक्ट, ये जो केसेस है, ये हैंडल करने के लिए यहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को लाइक बेसिकली उनको मोटिवेट किया जाता है सो दैट इट कैन बी एज चाइल्ड फ्रेंडली नेचर, ठीक है। एंड ऑल्सो द पॉक्सो ई बॉक्स फॉर द ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया जा सकता है इफ यू डोंट वांट टू विजिट द पुलिस स्टेशन। प्लस पनिशमेंट में यहाँ पे इट कैन बी अप टू डेथ सेंटेंस एज वेल इफ द केस इज
टू मच ऑफ एग्रीवेटेड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्ट है इसे 2019 में अमेंड किया गया था। द न्यू प्रोविजन के बारे में देख लेते हैं। द एक्ट मेड इट मैंडेटरी टू रिपोर्ट सच केसेस, ये रिपोर्ट करना ही होगा। अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पे विक्टिम अगर वो खुद नहीं कर रहे तो किसी और को उनके बिहाफ पे करना ही होगा, ठीक है। इट मेक्स इट द लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन एवर ऑफ द अगर किसी को पता है ना तो ये जो यहाँ पे इंसिडेंट है तो ये पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है, तो रिपोर्ट इज सेक्सुअल अब्यूज। इन केस ही फेल्स टू डू सो, अगर मान लीजिए कि वो नहीं किए, द पर्सन कैन बी पनिश्ड विद 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी को पता है अगर वो नहीं कर रहे तो उनको 6 months का उनको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा प्लस फाइन और फाइन। इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट टू द पीपल हु ट्रैफिक चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल पर्पसेस। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेन और अनट्रू इन्फॉर्मेशन। तो एज आई टोल्ड यू कि इसी अमेंडमेंट में आप देखिए फॉल्स फेक कंप्लेन में भी यहाँ पे उनको एड्रेस किया जाएगा। सो अंडर दिस प्रोविजन ओनली दिस पर्टिकुलर लेडी हैज बीन sentenced for 7 days, I think, right? All right. तो ये था क्वेश्चन जो कि मैंने पूछा था इन द लास्ट वीडियो। लेट्स लुक एट द आंसर। तो द आंसर फॉर द क्वेश्चन द Keoladeo नेशनल पार्क, इट इज द भागलपुर बर्ड सेंचुरी। एंड इफ यू लुक एट द जया जेटली कमिटी, इट इज टू एग्जामिन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज गर्ल, जो कि अभी इन्होंने रेकमेंड किया है दैट 21 शुड बी द मिनिमम एज फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड। एंड ऑल्सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द APPSC, it is Shantanu Dayal. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.